MBA is a scam? ऐसा सिनेरियो क्यों है? सिंपली बिकॉज जो फीस बच्चा दे रहा है और जो आउटकम उसे मिल रहा है उसमें उसको कोई कोरिलेशन नहीं दिखता. MBA या फिर PGDM? Equally good, depends on what college, what curriculum, what faculty. MBA का फुल फॉर्म मास्टर्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है. MBA का मतलब है माल बेच कर आओ. Do you agree to the statement? जी, अगर आपको एक MBA माल बेचना सिखा रहा है तो डेफिनेटली आई वुड अग्री. तो जब हम अपनी फर्स्ट जॉब देख रहे होते हैं तो what we exactly need to look at? क्योंकि प्रोफाइल और सैलरी का कॉम्बिनेशन दोनों होना जरूरी है. अगर मेरे पास बहुत बड़ा लोन का बर्डन है तो मुझे हाई पेइंग पैकेज लेना ही पड़ेगा. एक आइडियल फीस वर्सेस सैलरी का रेशियो क्या होना चाहिए? एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जो मैं फीस दे रहा हूँ एटलीस्ट उतनी सैलरी. What is the standard salary what industry is offering right now? गुड बैलेंस इन बोथ दोज थिंग्स इज 8 to 12. एक स्किल जो नहीं है और प्लेसमेंट उसकी वजह से नहीं होता है, वो क्या है? So hi and welcome back to this another podcast with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस podcast में हम बहुत सारे बातें करने वाले हैं, right? हम बात करने वाले हैं आपके वो सारे सवालों की जो आपके दिमाग में आते हैं जब आप MBA का प्लान कर रहे होते हो. भले वो रियलिटी हो प्लेसमेंट्स की, भले वो हम बात करें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की. कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पर तो बड़े बड़े पैकेजेस लिखते हैं, बट इंडस्ट्री में इन रियल क्या पैकेजेस एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है, उसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, ये सारे डिस्कशन करेंगे हम इस पॉडकास्ट में. सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट. लेट्स स्टार्ट. सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी. आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. और वेलकम बैक टू दिस अनदर पॉडकास्ट जहाँ पे हम बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं which can be related to whatever questions comes to your mind when it comes to MBA. I think जब हम MBA colleges की बात कर रहे होते हैं या फिर B schools की बात कर रहे होते हैं तो हर स्टूडेंट के दिमाग में प्लेसमेंट कंसर्न होता है. एंड प्लेसमेंट के साथ साथ करिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है. एंड टुडे आई हैव समबडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. So I just want you, sir, first of all, to introduce yourself so that we can take it forward. Hi, my name is Suchit. And I am the founder and CEO of Crucible Institute of Management. That's what I'm currently doing. I've done a lot of things in the past. Yeah, if you want me to talk about that, I can also do that briefly. But I mean, there's so many B schools, starting every single year in our country here. So why Crucible Institute of Management? Actually, I mean, there's no simple answer to that, but I always wanted to build a business of my own. I have done that in my past. Over my 18 years of total WorkX, 4 years I've spent with my own food business. So entrepreneurship is something that I always hold very closely to my heart. And when I decided of doing something of my own after my stint at Sugar Cosmetics, education is something that I really wanted to do for various reasons. And within education, MBA education is what I picked up because I saw that there's a deep pain point that the students have. And the solution at the same time is very simple. It looks complicated, but actually if you go down to build towards it, it is actually a very simple solution. So those two things put together, deep pain point of the student and a simplistic solution, led me to believe that I can do this, and hence Crucible Institute of Management. See, हम आपके B school पे तो definitely आएंगे. We will discuss. I have so many questions to ask. But उससे पहले, if I talk about 2025, 2024 में CAT में एस्पिरेंट ज़्यादा थे, ZAT के एस्पिरेंट ज़्यादा थे. बट लास्ट 2 साल से जो प्लेसमेंट सिचुएशंस मैं देख रही हूँ अक्रॉस B schools, including if we look at older IIMs, new IIMs, top B schools, they're struggling with placements, right? And when it comes to graduation, students still have this thing कि ठीक है, मैं bear कर लूँगा. बट पोस्ट ग्रेजुएशन में वो अनप्लेसमेंट वाला, नॉट प्लेसमेंट वाला जो पेन है वो स्टूडेंट, क्योंकि वो सबसे पहली और सबसे फॉरमोस्ट चीज जो देखता है वो प्लेसमेंट देखता है, राइट? तो जब सिचुएशन रिसेशन ऐसा है, डू यू थिंक कमिंग अप विद अ बी स्कूल रियली मेक सेंस? Okay, I have a very different perspective towards what you're asking. I don't think the problem of unemployment is more towards saying that we have more supply of talent versus the requirement in the industry. I think the bigger reason is that the talent that the companies require versus the skills that are being taught in these finishing schools is a big mismatch. Okay, the moment we start recalibrating towards what are the skills that the companies exactly need and build our education towards that, I think we'll see a much better output than what we are seeing. Because, I mean, look at what's happening in the country. The economy is growing, the startup ecosystem is growing, and there are a lot of meaningful funding that's coming into the country. If all of those are also indicators, then there's definitely a demand for talent.
which is being left untapped because I mean the companies are recruiting from elsewhere, but maybe not from these MBA colleges, and hence we need to be asking a very different question as to why this is happening, rather than just stereotyping that there's a problem. सुचित, आपने एक जवाब दिया कि इसका सप्लाई प्लस जो आउटकम आ रहा है उससे कुछ लेना नहीं है. इट्स अबाउट Not as much. right? It's basically lacking because we're not getting that kind of skilled candidates which is required by the industry. Absolutely. That's what you meant. But if I see the graph last 2 years, again, as we said, when it comes to IIMs, they're known for their quality education, Correct. the kind of faculties they have, the kind of exposure their students get. But True. still, they're also lacking with the same sort of problems. So see, it is okay if you have to really deep dive into that. The other big reason is also what is my salary expectation as a student and what is the salary benchmark that the college wants to push, because the demand may not exist at those salary levels that a student is aspiring for, because there's been a lot of propaganda around those high salaries, etc. And it becomes a problem when the companies are saying that I don't want to recruit talent at that expensive salary. But the colleges as well as the students may not be ready. So that's one big reason, which I think is missing in that traditional approach. So मेरा क्वेश्चन ये है सुचित कि आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट इसलिए भी नहीं है बिकॉज स्किल्स नहीं है स्टूडेंट्स के पास, राइट? दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. बट इफ आई सी ऑन द अदर हैंड, बिकॉज आई टॉक टू स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, if you look at all these IIMs, they are known for their quality education. The kind of faculties they have, I don't think so कि वो हमें कहीं मिलेगा. But उसके बाद भी वहाँ पे भी students जो हैं वो suffer कर रहे हैं when it comes to placement. तो फिर ऐसा क्यों? Okay. तो इसके 2-3 और कारण हो सकते हैं इसके अलावा जो मैंने कहा उसके अलावा. द फर्स्ट थिंग इज कि कंपनीज कह रही हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट तो है बट उस सैलरी लेवल पे नहीं है जो ये कॉलेजेस और स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा सेइंग कि इतने का पैकेज, इतने करोड़, इतने लाख एटसेट्रा, बट उसकी रियलिटी ये है कि इंडस्ट्रीज के पास उतना डिमांड नहीं है टू प्रोवाइड दोज काइंड ऑफ सैलरीज. ओके, तो हमें हमारा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री की एक्चुअल डिमांड कहाँ एग्जिस्ट करती है वर्सेस मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है. तो एक कारण वो है. दूसरा, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, इट्स अ मिक्स कोहॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स. किस तरह के स्टूडेंट की जॉब नहीं लग रही है वर्सेस स्टीरियोटाइपिंग की जॉब्स का इशू है. बिकॉज असली रियलिटी किसी को भी नहीं पता है. देयर इज, आई मीन, पीपल एंटर थ्रू लॉट ऑफ वेज. सम IIMs ऑल्सो हैव अ कोटा सिस्टम, okay, जहाँ पे percentile requirement is lesser. So it's a big, and I have been a recruiter, I have seen the difference in profiles because of these variances. Okay, so that can also be a reason. And definitely, I mean, every year the economy can behave differently and there can be certain ups and downs. But to largely generalize say कि ये is failing and there's no employment, I think is थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रापोलेट करने वाली बात है. इन रियल अगर हम बात करें तो MBA क्यों रिक्वायर्ड है? अगर हम कॉर्पोरेट साइड से देखें, वेरी गुड क्वेश्चन. एंड बहुत डाइवर्स स्ट्रीम्स से स्टूडेंट्स आते हैं, VC लॉयर्स, VC चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज. तो इतना नीड क्यों है MBA का? क्यों MBA करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हेन वी इंटरैक्ट आल्सो आस्क दैट सेम क्वेश्चन एंड दे आर इन दैट डायलेमा एंड आई एम श्योर यू सी इट अ लॉट मोर. आई टेल देम दैट आप एक स्टेप पीछे जाओ और MBA क्यों करना है उससे पहले ये पूछो कि मुझे अपने करियर में एक अच्छा स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए. ओके, दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट. अब वो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपका कॉलेज आपको ग्रेजुएशन के थ्रू जॉब्स दिलवाता है, दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड इनफ स्टार्ट. ओके, बट अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है, देन आपको ये पूछना है अपने बारे में कि वेयर आई स्टैंड करंटली, मुझे क्या चाहिए टू स्टार्ट माई करियर इन अ मीनिंगफुल वे. कुछ स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में होते हैं जहाँ बेसिक उनका सब बहुत अच्छा होता है बट एक्सेस नहीं होता है टू दीज अपॉर्चुनिटीज. And that is where a lot of these short-term courses, जहाँ basic grooming plus network access के साथ, it's a great thing to do. There are a lot of startups and a lot of new businesses in that space like Craftshalla, Hive School, जो 3 से 6 महीने तक के programs specifically for slightly ready students create कर रहे हैं. So that is one category of students. The other category is, if I am true to myself and I know where I stand, I know that I require intense improvement and intense grooming to be able to start my career well. And that is where MBA becomes very, very important. But हर कॉलेज जो उनको इम्प्रूवमेंट और स्किल्स प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज अ ग्रेट चॉइस. एनी कॉलेज जो सिर्फ डिग्री दे रहा है ऑन पेपर बट उनको एक्चुअल इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नॉट अ गुड चॉइस टू मेक. तो MBA को एक
ओवरऑल नाम देना इज डिफिकल्ट. मुझे क्यों चाहिए एंड मुझे क्या लेना है उससे इज मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क. एंड देयर आर डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ एमबीए कॉलेजेस केटरिंग टुवर्ड्स दैट. आपने एक और चीज मेंशन की कि आईआईटीज दे आर डूइंग गुड व्हेन इट कम्स टू आरओआई. अभी रिसेंटली आई हैव बीन टू आईआईटी डोम्स आईआईटी रुड़की आल्सो, राइट? बट वहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर भी ये है दैट इफ यू लुक एट आईएम्स, राइट, जिनकी फीस कंपैरेटिवली जस्ट डबल है. इफ यू लुक एट आईआईटीज में बैच साइज छोटा है, फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आधी है, राइट? एवरेज पैकेजेस जो उनका फीस है उसके अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा है. पर स्टिल दिमाग में ये है दैट एक तो अगेन आईआईटीज आर नोन फॉर इंजीनियरिंग, राइट? सेकंड थिंग इज कि वहाँ पे जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है वैसी नहीं है कंपैरेटिव टू आईएम्स, या अभी भी स्टूडेंट के दिमाग में है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आईआईटीज थ्योरेटिकल ज्यादा है, वेयर एज एमबीए के लिए यू नीड टू हैव दैट पर्सनालिटी बिल्डिंग, दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर. ये जो है वो अभी भी मिसिंग है. See, वो तो आई थिंक इज अ प्रॉब्लम विद मोस्ट कॉलेजेस, क्योंकि most of the colleges, irrespective of the tier and level of that college, they don't look at a student as an individual. वो एक बैच को पढ़ाते हैं, they expect कि एक बैच certain quality का आया है, सबको हम सेम तरीके से पढ़ाएंगे और सब एक लेवल पे मूव कर जाएंगे. जबकि जो रियलिटी है स्टूडेंट्स की, वो सबका लर्निंग रिक्वायरमेंट लेवल एट विच दे स्टार्टिंग बहुत अलग अलग है. तो जब तक एक कॉलेज स्टूडेंट को इंडिविजुअल लेवल पे समझ के उसके हिसाब से करियर पाथ चार्ट नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम पुराने नए बड़े छोटे कॉलेजेस में हमेशा रहने वाली है. ओके, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. आईआईटी का जो प्रोफाइल है, जो मोस्टली वहाँ पे दे आर ईदर फ्रॉम हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड या हार्डकोर टेक्निकल बैकग्राउंड हु हैव जॉइन्ड दैट टू चेंज देयर सेक्टर. तो उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली वो चैलेंज आता है. But is the college investing in charting out a specialized, customized learning plan for them? Definitely not, and hence the struggle. हम टियर 1, टियर 2, टियर 3 कैटेगरी की बात कर रहे हैं. वैसे तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बना रखी है. आपके हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टियर 1, टियर 2 और टियर 3? ऑनेस्टली बोलूं, मुझे नहीं समझ में आता. ये इंडस्ट्री ने कहाँ से आया, क्यों इतना पॉपुलर है ये. आई विल टेल यू मैं कैसे इवेल्युएट करता हूँ कॉलेजेस को. आई कीप टॉकिंग अबाउट टॉप 70 कॉलेजेस. अगर आपका टॉप 70 कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटी है तो यू शुड डेफिनेटली गो देयर. बट टॉप 70 अगर आप एनआईआरएफ के हिसाब से देखेंगे हाँ, तो कई सारे आईआईएम्स से आगे हैं मेरा प्राइवेट टॉप 7. मैं यूनिवर्सिटीज. क्यों टॉप 70 बोल रहा हूँ, टॉप 50 नहीं, टॉप 100 नहीं. उसका एक सिंपल सा रीजन है. जो भी पब्लिकली अवेलेबल प्लेसमेंट डेटा है और फीस डेटा है, अगर आप वो उठा के सारे टॉप के इंडिया के 200 कॉलेजेस को रैंक करेंगे ऑन द फैक्टर ऑफ सैलरी टू फी रेशो, यू विल फाइंड दैट द टॉप 70 डिलीवर अ सैलरी टू फी रेशो ऑफ 1 और मोर देन 1. 71st कॉलेज के बाद से जो आप एवरेज निकालोगे, वो इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग बिलो 1. ओके, एंड हेंस आई एम सेइंग कि हाउ डू वी स्टार्ट मेजरिंग एजुकेशन विद एन ऑब्जेक्टिव लेंस, बिकॉज अल्टीमेटली तो इट इज बिजनेस. पीपल माइट से दैट इट इज एजुकेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस, बट फिर आप चैरिटी कर लो. अगर आप उसको बिजनेस ऑफ एजुकेशन की तरह चला रहे हो तो कस्टमर है स्टूडेंट, डिलीवर द वैल्यू, शो द वैल्यू, प्रूव दैट वैल्यू. और एनआईआरएफ रैंकिंग की आप बात कर रहे हो, एनआईआरएफ स्टॉप्स एट 100. There are 4,000 colleges that exist in currently in the country. उसमें से सिर्फ 900 कॉलेज अप्लाई करते हैं, तो बाकी 3,100 तो जहमत भी नहीं उठाते कि मैं एनआरआईएफ के लिए अप्लाई करूँ. ओके, 800 जो अप्लाई करते हैं उसमें से एनआईआरएफ गिव्स रैंकिंग ओनली टू टॉप 100. तो मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू से ऑब्जेक्टिवली चल क्या रहा है. ओके, तो I don't understand tier 1, tier 2, tier 3. I only understand what is objectively measurable. And that is how I would ask any student to evaluate those colleges. तो सुचित, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन रियल अगर हम रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिकॉज आपने अपनी कंपनीज के लिए ऑलरेडी कैंडिडेट्स रिक्रूट किए हैं, तो कंपनीज क्या देखती हैं कैंडिडेट्स के अंदर, स्पेशली जो एमबीए ग्रेजुएट्स? Okay. I think if the companies are not requiring as hiring for a replacement role जहाँ पे already आप किसी के against recruit कर रहे हो, if it is long term talent building which they normally do from MBA colleges, I think वो दो चीज़ें largely देखती हैं. Obviously there are a lot of things, but primarily दो चीज़ें are very very important. सबसे पहली बात, जो भी आपने आज तक किया है in your professional academic life, वो कितने अच्छे से किया है. Because अगर आपने वो अच्छे से किया है, there is proof enough that whatever you do next in life, you will do better. And the second thing that they look at is what is my attitude as a student. अब attitude में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. How much I am willing to work hard. What is my attitude towards learning? Can I get the job done? Okay, do I have a problem solving attitude? So
more than the technical skills which become important in a lateral hiring scenario, the attitude and what you've done in the past becomes very important for a recruiter, because those are the only things that you can objectively evaluate in a MBA recruitment scenario. तो वहाँ पे the matlab, for example, a lot of students, the way they would walk into a interview room, the way they would dress, the way they will talk about things that they have done in the past, कितने depth, कितने passion, कितना examples वो दे रहे हैं versus generic theory, कितना excitement उनको है उन चीज़ों के बारे में बात करने में, tells us कि यार जो भी इस student ने किया है वो बहुत intensity के साथ, passion के साथ किया है, which is great. And then what is the overall attitude? Okay, those two things are good enough in a MBA recruitment scenario, because skills वहाँ evaluate करना बहुत मुश्किल है, because the typical MBA colleges are not even teaching those skills. जिस दिन से वो पढ़ाना शुरू करेंगे उस दिन से वो skill evaluation also becomes equally important. But आज की तारीख में the first two things that I said are more important. Okay. एक और सवाल ये है कि डू थिंक यू नो, बिकॉज मैं बहुत सारे कॉलेजेस जाती हूँ, वहाँ बच्चों का ये कहना होता है कि हमारे बैच में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अकेडमिकली दे आर टू गुड, Correct. right? They're lacking with communication. Do you think English plays a very important role when it comes to getting placement? So not just English, I categorize communication difficulties that an average Indian student faces at 3 levels. First level is English, जहाँ पे मेरा language का ही issue है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कम फ्रॉम इंदौर, मुझे पता है कि मैं एक बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम से स्कूल से पढ़ा था, पर जब तक मैंने कैट की प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी, मेरा ग्रामेटिकल इंग्लिश बहुत करेक्ट था बट बोलने में इशू था. ओके, तो एक है ग्रामर वाली इंग्लिश, एम आई कॉन्फिडेंट ऑफ दैट और नॉट. सेकेंड इज इंग्लिश सब सही है बट बोल पाता हूँ या नहीं. थर्ड इज सब कुछ ठीक है लैंग्वेज वाइज, बट मेरा कम्युनिकेशन में कितना कॉन्फिडेंस है. द मोमेंट यू पुट मी ऑन अ स्टेज इन फ्रंट ऑफ 10 people, do I start feeling underconfident? And the next level is very difficult professional scenarios and managerial, जिसको हम managerial communication बोलते हैं. So these are the 3 levels, and I think it is a big problem in the country, and it is a very, very important skill to have. But the problem is a company can say I am paying you money and hence you need to have those skills, which is absolutely perfect. But a college saying that just because you're not great at communication, I will not take you as my student is really, really problematic. Imagine आपको 4th स्टैंडर्ड में आपकी इंग्लिश टीचर ने बोला होता, आर्शी आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, कल से मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी, तो आप और मैं कहाँ होते. तो if a school cannot do that and still has the responsibility of teaching us, why is an educational institute to whom I am paying money to make me better is refusing to take me on the basis of communication? Okay, big problem in our country. मुझसे कई बार बहुत सारे कॉलेजेस जो हर थोड़ा सा नया स्टार्ट होते हैं, दे से दैट हमें ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यू नो स्टूडेंट, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स दे लुक एट प्लेसमेंट्स, Correct. राइट, एंड वी डोंट हैव एनी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स. Correct. सो हाउ समबडी शुड ट्रस्ट Okay. Kushal? Okay. So, and this is a very valid question. I mean, अगर मैं स्टूडेंट होता या मेरे अगर बच्चे इस स्टेज पे होते, तो I would have also asked the same question. Okay. The first thing that we try and explain to students is that आप currently कहाँ खड़े हो, it is largely a function of that. If you're standing at 90 plus percentile, clearly you have better opportunities available. This is not the opportunity. But if you're in that 70, 80 percentile wala bucket, where the colleges that are available to you look exactly the same, and you are worried कि यहाँ पे मेरा क्या होगा, because you hear those stories of placement struggles, inflated numbers in terms of salary, etc. So if you have those doubts in mind and you think that काश कोई alternative होता जो ये चीजें solve कर रहा होता, we are that alternative for you. So that is the first benchmarking that we want to do, that we are not competing against the top colleges right now, because I fundamentally believe that they are doing a much better job with what we are doing. But it is that 101st college where we are competing very aggressively, and I am saying that I'm definitely better than any college. So that is the starting point. The other is, while we may not have the placement history, we've all, because we are saying that there are two things that we're doing at Crucible fundamentally which is different. One is industry first approach and the second is student centric approach. Okay, industry first approach के अंदर हमने ये कहा है कि हम, as I was saying earlier, हमने roles समझे हैं, उसके अंदर skills जो चाहिए वो समझिए, और जो curriculum हमने build किया है वो हमने पूरी तरह से scratch से design किया है. Half the courses that we have in our curriculum are courses that no MBA colleges have currently in the country. Okay,
और उनको पढ़ाने के लिए वी हैव द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हु आर वर्किंग इन दीज रेप्यूटेड कंपनीज एंड डूइंग दोज थिंग्स डे इन डे आउट। तो क्या पढ़ाना है इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, कौन पढ़ाएगा, वो लोग भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बन के आ रहे हैं, एंड कैसे पढ़ाना है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये तीनों चीज़ें जब आप कंबाइन करते हो, और उसके साथ हम ये कह रहे हैं कि देर आर अबाउट 25 प्लस कंपनीज हु आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अस। कॉलेज की बैच शुरू होने में अभी 4 महीने हैं, उसके पहले से 25 प्लस कंपनीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइजेस, also startups from reputed founders, are associated with us to help build curriculum, provide industry experts for teaching, and also provide real world exposure and live learning opportunities to our students. Okay, so while we may not have the placements, obviously because this is the first batch, we have done everything in the background that enables these things to happen. Okay, unlike a traditional B school where the placements are driven by student committees, are largely a function of what alumni network I have versus deep relationships with these companies. And plus, we're guaranteeing that we will make students job ready from day one. And that is where a lot of this curriculum design, practical learning, hands-on training on tools, platforms that are actually getting used in companies come in handy. Okay. And on top of that, we are saying that we're so confident of this model because this is built on industry first and industry requirement basis, that we are ready and extremely committed to associating our risk with student risk and our success with student success by saying that the fee that we will charge is always going to be linked to the salary that you get through us. Okay. So what is the fee structure? So and I mean that's a large commitment that no college in the country has ever given, and I don't think will be able to give. But the simple fee structure for us is that our fee is always capped at 67% of the salary that you get through us. Okay. हम ये कह रहे हैं कि हम हमारी सक्सेस और हमारा रिस्क स्टूडेंट की सक्सेस और स्टूडेंट के रिस्क के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, एंड इसीलिए हमारी फीस हमेशा 67% ऑफ सैलरी होगी। और ये 67% का कारण ये है कि मैं 50% भी कह सकता हूँ, 70% भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता था, बट हमने इंडिया के टॉप कॉलेजेस ऑन द मेट्रिक ऑफ सैलरी टू फी रेशो रैंक किया है, और उन टॉप 30 कॉलेजेस का सैलरी टू फी रेशो 1.5 आता है। और अगर मुझे 1.5 सैलरी टू फी रेशो डिलीवर करना है तो मेरी फीस 67% होनी पड़ेगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक स्टूडेंट को समझाना हो तो वी आर प्रोजेक्टिंग एन एवरेज सैलरी ऑफ 10 lakhs फॉर द फर्स्ट कोहॉर्ट, क्योंकि 8 से 12 रेंज मैंने बात की थी, तो 8 से 12 का 10 लाख एवरेज। स्टूडेंट की फीस है 6.7 lakhs बिकॉज दैट इज 67% ऑफ 10। अब ये हम फर्स्ट ईयर में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में स्टूडेंट्स को चार्ज करते हैं। When the actual placement happens, if the student has worked hard and we've been able to provide that kind of opportunity, let's say मेरा placement हो गया 8 हाँ लाख। 11 लाख, so let's say 11 लाख का placement हुआ, तो student will pay us an extra installment of 67,000। वहीं अगर student का placement 10 की जगह 9 लाख का होता है, we will refund that 67,000 back to you। 8 लाख का होता है तो 1.34 lakhs to you, because we will always commit to that 67% and 1.5 times the ROI। और अगर नहीं होता है तो अब नहीं होता है तो उसके 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो स्टूडेंट ने मेहनत की है, सब कुछ किया है, फिर भी प्लेसमेंट एक्सटर्नल कारणों के साथ के कारण, या हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी रह गई हमारी तरफ से, वो कारण हो सकता है, या स्टूडेंट की मेहनत में कमी है। बट अगर स्टूडेंट की मेहनत में कमी है और मैं उसको प्लेसमेंट के टाइम पे बोलूँ कि क्योंकि आपने तब मेहनत नहीं की थी इसलिए अब आपको बेनिफिट नहीं है, अनफेयर। ओके, एंड हेंस व्हाट वी विल डू इज एवरी मंथ, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ 100+ case studies, 200+ assignments, 100 days of apprenticeship, 6+ live projects, all of those things will get evaluated on a monthly basis। तो हर महीने स्टूडेंट के पास एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट होगी जो रिलेटिव रिपोर्ट होगी। हम नहीं कह रहे कि आपको इतने परसेंटेज लाना है, हम ये कह रहे हैं कि आपको बैच के अगेंस्ट रिलेटिव परफॉर्मेंस देना है। शुरू के 18 महीने, बिकॉज प्लेसमेंट नॉर्मली 1.5 साल में हो जाता है, शुरू के 18 महीने में से अगर स्टूडेंट 6 महीने से ज़्यादा बॉटम 20% ऑफ द बैच में आता है तो उसकी सैलरी फिर फिक्स्ड हो जाएगी, बिकॉज उसको हर महीने हमने बताया है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बट अगर वो फीडबैक के बाद और इतने अपॉर्चुनिटीज़ देने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं होता है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए द फीस बिकम्स फिक्स्ड एट 6.7, अदरवाइज देयर इज़ नो टर्म कंडीशन एसोसिएटेड। एंड ये सारी चीज़ें हम एडमिट लेटर में बहुत क्लियरली स्टूडेंट्स को लिख के दे रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहा सर इट इज़ साउंडिंग टू गुड टू बी ट्रू, तो आप कैसे करोगे? ओके, I was also about to say the same thing, क्योंकि there are so many B schools out there। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो स्टार्ट हुए और स्टार्ट होते साथ ही कुछ ही साल में उनके एवरेज पैकेजेस आर लाइक ओल्डर IIMs, करेक्ट।
and a lot of B schools are coming into this. I mean, I see a lot of ad online, Mesa, Altera. So, you know, again, you know, we have your institute also in the list, Correct. right? And अगर आप किसी भी college यहाँ आपकी जगह वो भी हैं तो they'll also say the same thing that, you know, whatever we're delivering, it's the best, Correct. right? And we will deliver, right? But student जो MBA के लिए जाता है, PGDM के लिए जाता है, PGPM के लिए जाता है, वो student loan लेके जाता है. Correct. मैं कितना ही हम बहुत सारी वीडियोस देते हैं, मैं भी बात करती हूँ, यू शुड लुक एट दी करिकुलम, यू शुड लुक एट दी टीचर्स, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने आपको 5 साल में कहाँ देखते हो व्हेन इट कम्स टू एमबीए. वो इसलिए पूछा जाता है कि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, हो सकता है आपकी फर्स्ट जॉब कम हो, बट आप वो कैपिटलाइज कर जाओगे. मैं अभी रिसेंटली एक बच्चे का पॉडकास्ट ले रही थी, 2023 में टियर 3 कॉलेज से पास आउट है, उसका पैकेज लगा 9 लाख का, इसमें से 7.2 फिक्स था. In the span of 2 years, it's not even 2 years, he got a package from Motilal Oswal, 18 lakh ka package. It was because the way he was trained, right? So it's not always about first year. Correct. पर student के लिए क्या है? Placement is the whole soul Correct. thing to decide a college, right? And that is also one of the reasons कि colleges अपनी website पे 100% placement, inflated placements, ये भर के मतलब आपको सच मुझसे ज़्यादा पता है, तो I will not comment on that. तो that what I'm saying कि you know जब ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस हैं and they all are saying the same thing what you're talking about, तो वो क्यों आपके पास आएगा? See, when we say बहुत सारे, first of all तो I have a disagreement कि actually बहुत सारे हैं क्या, okay? Because इंडिया में आज की तारीख में 4000 से ज़्यादा, अगर आप शिक्षा पे प्लेटफॉर्म पे देखोगे, which is one of the larger portals which lists those colleges, तो उनके पास तो 5000 कॉलेजेस की लिस्ट है. आई एम सेइंग उसमें से कितने बंद हो गए, खुल गए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगर हम 3000 AICTE कहता है, ओके, लेट्स स्टिक विद दैट नंबर. तो क्या सारे 3000 कॉलेजेस उस कैटेगरी के हैं जो आप बात कर रहे हो? ठीक है. अगर कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल जो कॉलेजेस आपने नाम लिए, मेसा, ऑल्टेरा, लेट, आई थिंक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 10 भी हो गए तो 3000 के बराबर तो नहीं है ना. जब तक ये 10 कॉलेज बढ़ के 3000 की बराबरी ना कर ले या 3000 को रिप्लेस ना कर दे, तब तक ये innovation in education will have enough scope, because students are saying what is the alternative, and all of these colleges are providing alternatives in their own ways. Okay, तो सब अपने अपने तरीके से इनोवेट कर रहे हैं. कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, कुछ एवरेज सक्सेसफुल होंगे, तो दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. बट अगर आप इन सारे कॉलेजेस का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि हम तो फिर भी लेट हैं, आई वुड से आई एम द 8th और द 9th कॉलेज, बट 2 से 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस प्रीटी फैंटास्टिक. सबके बैच साइजेस बड़े हैं, सबकी एवरेज सैलरीज बढ़ी हैं, एंड सबका फीस भी उन्होंने, दे हैव बीन एबल टू इंक्रीज द फीस आल्सो इन दैट प्रोपोर्शन. ओके, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इस तरह के कॉलेजेस किस मेंटालिटी से आ रहे हैं. इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अ स्टार्टअप मेंटालिटी, जिस तरह से इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, इफ यू आर ट्रीटिंग एजुकेशन आल्सो फ्रॉम अ स्टार्टअप लेंस एंड सेइंग हाउ डू वी इनोवेट एट अ वेरी वेरी रैपिड पेस, ठीक है. We've raised an angel round of 1.5 crores. All of these people who've been associated with us are educators at heart. By profession, they're not educators. Some of them do it as a part-time thing, a pro bono thing, etc. तो वो क्यों associate होंगे unless they see something really value adding? Why would these companies get associated with us जब तक उनको ये नहीं दिखेगा कि हमारे talent का requirement कहीं ना कहीं इस तरह का कॉलेज ही fulfill कर पाएगा? And that is why they are also ready to commit their time and resources in being partners with us. वरना उनके पास क्या incentive है? Okay. The other thing that I don't want to go into too much details is, but quality of teaching, हम दूर से, मैं proof की बात कर रहा हूँ कि दूर से सब अच्छा लगता है, जो आप बोले कह रहे हैं ना कि सब एक जैसा दिखता है. I would urge the students to lift एक layer and नीचे देखो. जो हम हमारी फैकल्टी को, विजिटिंग फैकल्टी को जो सैलरी देंगे या फीस देंगे, इज 4x देन एनी टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. ओके, तो वो अगर कमिटमेंट हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं एज अ यंग न्यू बिजनेस, तो जब हम बड़े हो जाएंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो इट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज. द अदर थिंग इज, आज की तारीख में अगर आप किसी भी स्टूडेंट से ये पूछो या किसी भी कंपनी से पूछो, फॉरगेट अ स्टूडेंट, कि आपके शहर के बाहर आप मुझे टॉप 70-80 कॉलेजेस के बाद कोई से भी कॉलेज के 5 नाम बता दो, आई चैलेंज कि कोई भी वो नाम नहीं बता पाएगा खुद के शहर के बाहर, बिकॉज देयर इज नो ब्रांड बिल्डिंग दैट दीज कॉलेजेस हैव डन, बिकॉज दे हैव ऑपरेटेड इन अ पैरेलल यूनिवर्स, सेइंग हमारा काम एजुकेशन देना है, हम एकेडमिक वर्ल्ड हैं, इंडस्ट्री इज जस्ट अ bystander for us. That is the mentality. Whereas we are saying that we are building our brand with the companies from day 1 or day 0. Okay, तो हमारा brand before launching is already there in front of the company, and it will only grow stronger. Lot of people have seen, let's say, Mesa School. Okay, I respect them for what they are doing,
2 साल में द अमाउंट ऑफ ब्रांड दैट दे हैव बिल्ट एंड जेन्युइन ब्रांड, क्वालिटी ब्रांड, तो दैट विल नेवर बी एबल टू, आई मीन वो पॉसिबल ही नहीं है फॉर अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अ ट्रेडिशनल बी स्कूल टू डू, बिकॉज नहीं आता. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, बट वो दे डोंट कम फ्रॉम दैट डीएनए एंड दैट माइंडसेट. So that is where the differentiator comes, and I am happy to be the 10th college because there is precedence. ठीक है, but there is enough runway. as I said, 3,000 जब तक हमारे जैसे कॉलेज नहीं कर लेते तब तक लंबा है रास्ता. What is the course you have? Is it like MBA? Is it like PGDM, or what you have? It is a PGPM course, Hmm. okay, because for an MBA and PGDM or a diploma, you need to be affiliated with AICTE, which we are not. We've chosen to stay outside those guidelines, okay. ऐसा क्यों? Okay. See, AICTE क्यों बना था ये स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. आई एम श्योर यू नो एंड ऑफ कोर्स यू नो, बट बिकॉज ये हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं. तो 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से AICTE को ज़्यादा पावर मिले एंड दे वर अलाउड टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. द फर्स्ट थिंग दे सेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. सेकंड थिंग दे सेड PhD फैकल्टी होनी चाहिए, बिकॉज मैं क्वालिटी ऑफ फैकल्टी कैसे जज करूंगा. एंड विद इन PhD ऑल्सो दे सेड द स्पेक्ट्रम ऑफ टेन्योर होना चाहिए, तो पुराने नए. एंड थर्ड थिंग दे सेड वाज करिकुलम हम स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे ताकि कॉलेजेस एक लेवल ऑफ टीचिंग से स्टार्ट कर पाएं. अब while objectively and intent wise these three are perfect things to evaluate the quality of a college, this is also becoming the suffocating factor in terms of innovation in education. Infrastructure, आज की तारीख में अगर मुझे क्रूसिबल इंस्टीट्यूट शुरू करना होता with the बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स की फीस 6.7 नहीं होती, 13 लाख होती. और वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता पैसा, कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में वो पैसा नहीं जाता. सेकेंड, PhD फैकल्टीज. इफ वी आर सेइंग कि बिजनेसेस हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली, okay, the way they're selling, the channels that they're using, Instagram content, e-commerce, quick commerce, तो वो 5 साल से 7 साल पुरानी चीज़ें हैं. If the faculty world or the academic world has not seen that in business in reality, तो वो कैसे वो कोर्स डिज़ाइन कर लेंगे और कैसे वो पढ़ा लेंगे. Hence the PhD requirement also becomes a restriction, okay. And the third thing, curriculum design. We said that half the courses that we have are things that any college doesn't have in the country. तो वो liberty to design curriculum from scratch will also not happen, okay. And hence we are saying that because we want to innovate education, we have to operate outside those guidelines. We've chosen to be like that, and we will continue to operate outside till the guidelines improve. There's definite improvement that's happening in the education policy. It's becoming much better year over year, and we hope that someday it aligns with what the education really needs. So just I'll be honest to you, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये कहती हूँ कि जो कॉलेजेस AICTE अप्रूव नहीं है, जैसे AICTE है, स्टिल देयर इज समबडी जिसका डर है, यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग, राइट. बट अगर एक कॉलेज AICTE है ही नहीं, मतलब आपके ऊपर कोई है नहीं मॉनिटर करने के लिए, यू आर दी होल सोल मॉनिटर. ऐसे केसेस में कई सारे अगर हम पास्ट में देखें, राइट, कॉलेजेस आए, राइट, दे हैव स्टार्टेड, क्रिएटेड अ बिग बूम, राइट. जैसे स्टार्टअप्स में भी कई सारे कंपनीज बूम हुई और वो जैसे ही चीजें और स्ट्रेच हुई तो वो खत्म हो गई. करेक्ट. जैसे हम बायजूस की बात कर लिए. करेक्ट. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं. एब्सोल्युटली राइट. तो जब कोई बॉडी है ही नहीं रेगुलेशन के लिए, डोंट यू थिंक इट्स रिस्की फॉर स्टूडेंट्स टू इन्वेस्ट 6-7 लाख रुपीस आल्सो? ओके, सो I will answer it in 2 ways. Okay, first of all, affiliation to AICTE also does not guarantee that, because अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, डज दैट इम्प्रूव बिकॉज AICTE अफिलिएशन है, उसका देयर इज नो एम्पेरिकल प्रूफ, ओके. एंड दैट इज वाई जो ये 3,000-4,000 कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी चैलेंजेस है इज इन स्पाइट ऑफ दैट अफिलिएशन. तो वो गाइडलाइंस हैव नॉट बीन एबल टू हेल्प, ओके. दैट इज द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड इज दैट just because we have chosen to be outside those guidelines does not mean that we don't have any monitoring in place, etc. And it is also about the intent RC, which is very difficult to prove. But there are certain principles that we work with internally, and one of those things is that we will always do this from a student first approach, which also means that हमारी batch sizes कभी भी disproportionately increase नहीं होंगी just to make extra money, okay. तो ये एक छोटी सी बात है, but वो जो आप बायजूस का फॉर एग्जांपल, मतलब नोबडी नोज द इंटरनल रियलिटी, बट अगर आप लार्जली उसका समरी निकालोगे तो अग्रेसिव ग्रोथ ऑल एट ऑल कॉस्ट वाली स्टोरी है, ओके. तो वो अगर होगा कहीं पे भी तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ओके. एंड दैट इज व्हाई वी विल नेवर गो द रूट ऑफ VC मनी. All investors that are on board are
एज आई सेड प्योर एडुकेटर्स, ओके। तो हम बहुत मीनिंगफुल तरीके से हमारे पेस पे इसको बिल्ड करेंगे, वर्सेस सी इट इज़ वेरी सिंपल वेदर आई एम डूइंग इट फॉर द लव ऑफ एजुकेशन or whether I am doing it for the love of the business of education. I am very sure a student who talks to me for 1 hour will be convinced that I am doing it for the love of the education and not for anything else. Because after having achieved whatever I have achieved, I don't need to do this if I were to if I was looking to make money through this. And the second biggest thing is क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी revenue is completely linked to the student. That is our extremely bold call, right? वो मैं 1 साल अगर डिलीवर नहीं कर पाया या एक बैच के साथ अगर मैं डिलीवर नहीं कर पाया, देयर इज नो बैच, ठीक है। तो मैं एक बैच से ऐसा कितना पैसा बना रहा हूँ, मैं कोई 20-25 लाख तो चार्ज कर नहीं रहा हूँ, तो मैं ऐसा कितना पैसा बना लूंगा कि मैं एक बैच के लिए इतना सब क्रिएट करके एंड देन आई अलाउ इट टू फॉल फ्लैट। तो वो इंटेंट का इशू होता है लार्जली इन दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस एंड आवर इंटेंट इज वेरी वेरी डिफरेंट। ऑब्वियसली आई मीन थ्रू अ कॉन्वर्जेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, but I'm very sure a detailed conversation with a student directly, they will see that. And that's why I am talking in our admissions process, I am talking to a lot of interested and serious students myself, not just students, I am talking to their parents, because I understand that it is not just a student struggle, it is their parents struggle also, okay. So I don't think anybody in the country, any college would go to the extent of very senior people going and talking to students and their parents. And कई students को मैंने कहा है कि यार आप 1 साल कैट दो, आपका बेटर हो सकता है और उसमें क्या चाहिए वो आप बताओ, ओके। वेदर यू जॉइन क्रूसिबल और नॉट, जस्ट बिकॉज यू स्पोकन टू मी, यू बिकम माई स्टूडेंट फॉर लाइफ इफ यू ट्रीट मी एज अ टीचर, ओके। सो दैट इज माई इंटेंट एंड होपफुली वील बी एबल टू प्रूव अ लॉट मोर ऑफ दिस ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स। अच्छा सोचो, तो एक और चीज़ है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोला भी कि कॉलेजेस, whether you look at older IIMs to every category of colleges, अगर मैं सिर्फ अपने टेन्योर की बात करूँ, the day I started making videos, I've seen a tremendous changes in terms of the fee structure. Yes. Right? उसके साथ साथ बैच साइज या आपने भी ऐड किया कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज, प्लेसमेंट में इन्फ्लेशन बहुत है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस साल आई टॉक अबाउट टॉप कॉलेजेस लाइक सिम्बियोसिस, राइट, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैकएंड पे ये पोस्ट कर रहे हैं कि एवरेज पैकेज 25 लाख का है, बट जो सैलरी मिल रही है ऑफर लेटर्स में वो 15-16 लाख से ज्यादा नहीं है। These are the top colleges if we talk about. तो नीचे के कॉलेजेस में क्या सिचुएशन होगी, nobody knows. Correct. Right? तो somebody can judge कि अच्छा इन्फ्लेशन, हम कैसे पता करें कि कॉलेज का कितना इन्फ्लेशन है, हाउ टू गेट द रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स व्हेन इट कम्स टू दीस स्कूल्स? वेरी डिफिकल्ट, okay, very honestly very difficult, because जो students, the best way is to talk to the students who are currently studying, but अगर कोई आपका बहुत क्लोज दोस्त नहीं है तो वो स्टूडेंट्स भी डरते हैं सच बोलने में, क्योंकि प्लेसमेंट कमिटीज, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन व्हाट यू टॉक अबाउट द कॉलेज, एंड क्योंकि उनका प्लेसमेंट इज ऑल्सो एट रिस्क, तो वो नहीं बात कर पाते हैं खुल के, ओके। सो दैट इज वन पर्सपेक्टिव, एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडिट एटसेट्रा अलाउ यू अनोनिमस पोस्टिंग, बट उसका एक अलग रिस्क ये है कि एक स्टूडेंट जो थोड़ा भी ज़्यादा डिसग्रंटल्ड है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके भी एक कॉलेज की बुराई कर सकता है, ओके। तो टू फिगर आउट कि सच क्या है बहुत मुश्किल है। द ओनली थिंग दैट आई कैन टेल अ स्टूडेंट विच आई डू इज़ कि प्लेसमेंट नंबर्स आपको मानने पड़ेंगे कि जो हैं वो हैं, उसमें आप ये मान लो जो भी 10-15%, 20% आपको एडजस्टमेंट करना है आपके हिसाब से आप कर लो, बट आप कॉलेज से ये जाके पूछो कि आपका जो भी प्लेसमेंट इस साल हुआ है, नेक्स्ट ईयर आप क्या बेटर करने वाले हो, आपका करिकुलम में आप क्या चेंज कर रहे हो, आप क्या नई स्किल सिखा रहे हो, कौन सी कंपनीज के साथ आपने टाई अप किया है, कौन आपका करिकुलम चेंज कर रहा है। एक फनी चीज़ होती है, सारे कॉलेजेस में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ करके एक बॉडी होती है जो साल में एक बार मिलती है टू डिसाइड कि इंडस्ट्री रेलेवेंस करिकुलम में कैसे बिल्ड की जाए। वहाँ पे जो लोग आते हैं कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं आते हैं, आधे दिन का वो टी पार्टी होती है एवरी कॉलेज। तो इफ दैट इज माई मॉडस ऑपरेंडी ऑफ बिल्डिंग इंडस्ट्री रेलेवेंस, तो स्टूडेंट शुड बी आस्किंग दोज क्वेश्चंस, एंड इवन बिफोर आस्किंग दैट क्वेश्चन आई वांट टू चैलेंज कि इन स्टूडेंट्स को कोई सामने चेहरा भी मिलेगा क्या ये सवाल पूछने का। तो अगर कॉलेज ये मान के बैठे हैं कि बच्चा डर के मेरे पास अगले साल आता रहेगा, आई एम सेइंग जिन कॉलेजेस का 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, AICTE को अगर और स्ट्रेंथन करना है, दे शुड टेल कि आपका बैच साइज उतने नंबर से रिड्यूस होना चाहिए। इफ वी आर सेइंग द बॉडी हैज रियल पावर, तो अगर 100 बच्चे प्लेस नहीं हुए, आप करिए उनका प्लेसमेंट, सॉरी जो एनरोलमेंट नंबर है, सीट नंबर है, उतने नंबर से कम। तो वो अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट, एंड हेंस अ बेटर वे इज टू अंडरस्टैंड कि कॉलेज उस पर्दे के पीछे क्या चीज़ें कर रहा है कि अगले साल ये बेटर हो।
if you don't get an answer to say कि यार मैं ये better करने वाला हूँ next year, I would be very surprised that a college has an answer to that. तो वो नंबर कुछ भी कई हो, बार अगले बोल साल के रिस्क भी है. नहीं होता है. This is also something which happens Correct. because admission time पे they also try to attract students by doing n number of promises, but जब वो student college में land करता है तो समझ में आता है कि जो मैं सपना देख के आया था वो सपना ही है. बहुत सारी चीजें हैं, मतलब I don't want to talk about it, but I can definitely say I've been a recruiter, okay, and multiple colleges over 4-5 years, at least 20 colleges in my 4-5 year tenure, and postgrad colleges. I as a recruiter have been told कि सर बाकी कंपनीज आपको हमारी एवरेज सैलरी इतना दे रही हैं, आपका नंबर नीचे है उससे, why don't you add a variable component, why don't you add a joining bonus. तो those are just tactics to make the CTC look higher, but actually student के हाथ में वो नहीं. So if the colleges are pushing the companies in that manner, saying just to become comparable to other companies, you should do this, and it's very indirect. So I feel like these are the unethical practices, not from corporate but from colleges as well. बहुत सारी चीजें हैं आरसी, मतलब जो पब्लिक डोमेन में है उसकी बात मैं कर सकता हूँ. एंड वन थिंग दैट आई रियली गॉट सरप्राइज विद दिस ईयर स्पेशली इज बिकॉज जो मैंने पर्सनली थ्रू माय पर्सनल इंटरेक्शंस मुझे दिख रहा है एटसेट्रा, वो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट there, I mean, the one thing that I absolutely didn't like and unethical is colleges charging money from students to check whether they are present in a wait list or not. Application भरने के लिए तो पैसा बहुत सारे colleges charge कर रहे थे. We don't, because I don't believe in that. But ये तो नया है कि आपको अगर आपका नाम वेट लिस्ट में है या नहीं है वो देखने के लिए भी आप हमें पैसा दीजिए. मतलब आपको सी एप्लीकेशन में आप पैसा ले रहे हो क्योंकि यूर सेइंग कि मेरा एफर्ट जाता है एप्लीकेशन स्क्रीन करने में. फेयर. वेट लिस्ट एक लिस्ट है, आपको ऑनलाइन वो लिस्ट पब्लिश करनी है और जिसके पास ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन आईडी है वो आईडी डाल के मुझे नंबर चेक करना है मैं हूँ या नहीं. तो आप किस बात का पैसा ले रहे हो क्लियरली, मतलब आई वांट टू स्क्रीम एट दोस कॉलेजेस एंड से कि आपने क्या कर रखा है. बट द प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स आर स्टिल लाइनिंग अप एंड इन दोस कॉलेजेस एंड सेइंग मेरा वेट लिस्ट में आया कि नहीं. दे आर नॉट रियलाइजिंग कि ये कितना स्कैमी है ये इस चीज के लिए भी पैसा लेना. इस साल तो ऐसा भी हुआ लास्ट 2 साल से कि कई कॉलेजेस में कई सारी कंपनीज आई इंक्लूडिंग टॉप कॉलेजेस, एंड जब स्टूडेंट्स वहां गए तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. I mean, I feel like आप सोचो उस स्टूडेंट को क्या फील होगा जिसने 20 लाख, एंड these are the brand colleges I'm talking about. Placement committees have scheduled meetings and everything. Student shortlist हो गए, वो 4 महीने बाद जब रिसर्च कर रहा है जा रहा है तो पता चल रहा है कि कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करी, और वो एक नहीं कई कॉलेजेस में आई है, उसके बाद दोबारा भी आई हैं. See, that is where I think ये जो इंडस्ट्री और एकेडमिक वर्ल्ड का रिलेशनशिप है ये ब्रोकन है, एंड इसका ये सारे सिम्टम्स एंड उसके सारे आउटकम्स हैं. ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग टू सीनियर पीपल इन माय इंडस्ट्री पार्टनर लिस्ट, आई एम टॉकिंग टू देयर हेड ऑफ एचआरस, आई एम टॉकिंग टू द पीपल इन द एचआर टीम, बिकॉज अगर ये पार्टनरशिप एक्चुअली मुझे इम्प्लीमेंट करनी है तो सीनियर लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू दोज कंपनीज. एचआर हेड्स इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ हो नहीं सकता, एंड देयर टीम. So if I am involved, I am visiting a lot of these offices as long as they are in Mumbai and other cities whenever I travel. तो अगर ये लेवल ऑफ रिलेशनशिप है आपको कैसे नहीं पता चलेगा कि वो कंपनी क्या है. ठीक है, तो एंड प्लस द अदर थिंग इज देयर इज ऑल्सो ये जो स्टार्टअप वर्ल्ड के नाम पे एक मतलब 2 एक्सट्रीम है, या तो मतलब सब बुरा है सब फ्रॉड है, या बहुत ग्लैमरस है जो शार्क टैंक पे चल रहा है एटसेट्रा. तो वो 2 वर्ल्ड्स है, बट देयर इज ऑलवेज अ वे टू इवैल्यूएट अ स्टार्टअप सेइंग दैट इसमें रिस्क एंड पोटेंशियल इक्वेशन क्या है. तो अगर आप डीपली इन्वॉल्व हो किसी कंपनी के साथ तो यू कैन से यार ये स्टार्टअप है बट सेफ है, रिस्क फ्री है एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट ये स्टार्टअप थोड़ा सा रिस्की लग रहा है. दैट इज वाई इन आवर कंपनी पार्टनर लिस्ट इफ यू सी द startups that are there are also from pedigreed founders. Okay, I'm not saying that is the only way to evaluate, but I know them personally. They come from IIT, IIM backgrounds, HUL, McKinsey, BCG, Bain. तो थोड़ा सा वो आप if you are able to build that kind of deep relationship, deep understanding, ये सब नहीं होगा. But if you are saying कि मैं हर कंपनी के पीछे भागूंगा क्योंकि प्लेसमेंट सीजन आ गया है, तो आपने क्या इवैल्यूएशन किया, तब ये होगा 100% होगा. अगर MBA की बात करें तो a lot of students put this in comment section कि MBA का फुल फॉर्म मास्टर्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, MBA का मतलब है माल बेच कर आओ. Do you agree to the statement? See, from a student perspective, अगर आपको एक MBA माल बेचना सिखा रहा है तो definitely I would agree, okay? Because I believe that if you are starting your career as a sales professional, sales life में हमेशा काम आता है. तो वो अगर वो अप्रोच है तो then I agree. But if the approach is to say कि कॉलेज माल बेच के आपको निकल गया है, तो I would say हो रहा है,
सब कॉलेजेस में नहीं हो रहा है बट हो रहा है। एक और चीज है, आप कह रहे हो कि अगर आपको लेट्स से सेल्स में एंट्री मिल रही है, स्टूडेंट डोंट वांट टू गेट इनटू सेल्स, right? I That is don't also know. one of the reason they want to go for MBA, right? They want to enter into manager roles, right? If you talk about finance, they want to get into, you know, core roles, right? And if you talk about marketing, they again want to get into core roles. But if we see on a broader perspective, ज्यादा जॉब्स जो है वो सेल्स की हैं, ज्यादातर कॉलेजेस में सेल्स के प्लेसमेंट्स हैं, करेक्ट, राइट? तो जो स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं उनके मन में यही है कि दे स्पेसिफिकली आस्क दिस क्वेश्चन, हम ऐसा तो नहीं मेरा सेल्स में सब प्लेसमेंट हो जाएगा, तो इस पे क्या कहना है आपको? Okay, so see, the thing is, when I say sales, I am talking of an area sales manager in a FMCG setup or in a B2B SaaS setup, etc. तो सारे sales role एक जैसे नहीं होते, I would agree. In lot of places, the companies are to blame कि वो, for example, lot of students tell me, and I have seen that in my recruitment days, is कि वो financial advisory role बोल के etc. मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। मैं अभी रिसेंटली एक कैंपस टूर के लिए गई थी एक कॉलेज ग्रेटर नोएडा के अंदर। दो स्टूडेंट्स मिले, दे गॉट प्लीज्ड विद नौकरी। नौकरी केम विद अ वेरी फैंसी प्रोफाइल, राइट? तो जब फैंसी प्रोफाइल, तो स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड, ठीक है? वो गए, उनकी ज्वाइनिंग थी और उनसे बोला ये आपके ऑफिस में आज आखिरी दिन है। दे फील्ड पे जाओ, हाँ, मतलब ये आज आपका ऑफिस में आखिरी दिन है, पहले दिन ही आखिरी दिन है। एंड देन दे सेड कि यू नो हमें तो नहीं जाना है, एंड अगेन कैम बैक टू कॉलेज कि हमें दूसरे प्लेस में बैठना है। एंड दिस इज विद ब्रांड्स, यू नो, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट नौकरी। आपकी बात सही, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कंपनीज आर टू ब्लेम, बिकॉज अगर आपने रोल कुछ और बोल के बेचा है और फिर स्टूडेंट जब ज्वाइन कर रहा है आप उसको बोलोगे सेल्स, तो बहुत गलत चीज है, ठीक है? फाइनेंशियल एडवाइजरी बोल के आप उनको सेल्स रोल, रिलेशनशिप मैनेजमेंट रोल्स दोगे तो इज अ प्रॉब्लम, ओके? कई कंपनी सेल्स रोल बोल के देती भी हैं, बट देयर इज नो वेल डिफाइंड पाथ, ठीक है? बिकॉज I have seen a lot of reputed large FMCG companies from premium tier 1 institutes hiring from there and making them do the job of a sales executive for more than the training period. तो आप वो करवाते रहोगे तो 6 महीने में बच्चा बोलेगा कि यार मैंने सीख लिया, आपने मुझे सीखने के लिए बोला था, मैंने कर लिया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, बट ये where is it ending? तो वो एक डेफिनेटली इशू है, एंड दैट इज व्हाई द सेल्स प्रोफाइल्स गेट बैड नेम, बदनामी जो है। ही प्रोफाइल है या फिर और भी प्रोफाइल्स होती हैं? इफ वी टॉक अबाउट फाइनेंस, या फिर अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, हम मार्केटिंग की बात करें। ऑपरेशंस में सबको पता है कि ऑपरेशंस तो ऑपरेशंस है, ठीक है? और ऑपरेशंस का रोल आप बोल के हायर करते हो, उसको आप कितना भी फैंसी कर लो, अल्टीमेटली जिसको अंदर से ऑपरेशंस करना होता है उसको पता है कि यार मुझे एक वेयरहाउस, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एक फुलफिलमेंट सेंटर, ये सब मेरी लाइफ में है, ठीक है? बट और सेल्स वाले, देयर आर लॉट। आई इंटरव्यूड अ स्टूडेंट इन फैक्ट येस्टरडे एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट काइंड ऑफ रोल वुड यू वांट आफ्टर एमबीए। ही सेड मुझे सेल्स करना है, ओके? तो आप जिसको करना है उसको करवाओ, ठीक है? जिसको नहीं करना है आप क्यों करवाना चाहते हो? तो सेल्स की बदनामी है ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स आल्सो थोड़ा सा उनको ये कंफर्ट फैक्टर चाहिए, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा इजी रूट चाहते हैं, उसकी वजह से भी इशू है। कंपनीज टू गिव यू अ सेल्स प्रोफाइल व्हाइल कॉल इट समथिंग एल्स, तो वो भी इशू है। एंड प्लस देयर हैज टू बी अ करियर प्रोग्रेशन। सो आई जॉइंड नोकिया आफ्टर माय एमबीए, and Nokia had a management trainee program which resulted into a sales profile, area sales manager. But that was a very powerful role because we were the CEOs of our territories. Okay, so that has so much learning, so much meaning, and plus they had a path because all of us who did a sales role for 2.5, 3 years moved into regional retail roles, marketing roles, national roles, international roles. तो अगर आपकी कंपनी वो डिजाइन कर पा रही है तो सेल्स इज अ ग्रेट एंट्री पॉइंट। बट आपने सिर्फ वो मैनिपुलेट करने के लिए एक रास्ता बना लिया है आसान, सस्ता, इंटेलिजेंट सेल्स ऑफिसर ढूंढने का, इज अ प्रॉब्लम। तो इसके अलावा दूसरे रोल्स भी होते हैं, या फिर आपके हिसाब से अगर मैं 100% की बात करूं, लेट्स से अगर हम मार्केटिंग की बात करें, आपके हिसाब से कितने परसेंट सेल्स जॉब है और कितनी परसेंट कोर जॉब्स है? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द रिक्रूटर्स दैट कम टू अ कॉलेज, बट अगर हम एक्चुअली इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात करें तो किसी भी कंपनी में सेल्स टीम्स हमेशा बड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आज किसी भी स्टार्टअप को उठा के देखें जो 200 से 500 करोड़ का रेवेन्यू या 100 से 500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, उसमें अक्रॉस वेरियस लेवल्स, मतलब मैं कह रहा हूँ एंट्री लेवल से ऊपर तक 40% of your employee base, if they are direct employees, will be in the sales function. Okay, especially if you are retail heavy and physical retail heavy. In an omni channel setup वो 30% होगा, 40% होगा, बट उतना सेल्स प्रोफाइल होता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो, ASM, एरिया एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, TSM, वो सारे लेवल्स होते हैं, बट it's a bulk, the large part of the companies will have that kind of role. मार्केटिंग टीम्स ऑब्वियसली छोटी होती हैं बिकॉज यू आर ड्राइविंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एज अ कोर टीम, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फाइनेंस टीम्स और छोटी होती हैं, HR टीम्स और छोटी होती हैं,
एंड दैट इज वाई वाइल HR इन माई माइंड इज अ ग्रेट स्पेशलाइजेशन, बट क्योंकि वो टीम्स बहुत छोटी होती है वहाँ पे एंट्री मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता है प्योरली मैथमेटिकली. ओके, तो बट स्टिल आई वुड से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी कहाँ लाई करता है, वो उससे उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि HR में कितने रोल हैं वर्सेस सेल्स में कितने रोल हैं. अगर आपने मन बना लिया है कि ये मेरी स्किल है और मैं अच्छा कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट यू शुड फॉलो विदाउट वरिंग अबाउट कि कहाँ पे रोल्स ज़्यादा हैं और कहाँ पे सैलरी ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल इन माई MBA आई वुड हैव गॉटन इनटू अ रोल which paid me exactly double versus what I got. But I was very sure, and I had confirmed offers from Nokia, PNG, and HUL. Okay, and there were other offers which were exactly the double, but I chose to be in the sales role because I was very clear. एक तो वो और clarity सवाल जरूरी है. मेरे दिमाग में इसी से आया, जब स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें अपनी पहली जॉब में क्या दिखना चाहिए. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कॉलेजेस में बिग 4 आ रहे हैं या फिर बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, तो एंड यूजुअली क्या होता है, बिग ब्रांड्स कम विद लेसर पैकेजेस, राइट, एंड स्टार्टअप कम्स विद थोड़ा सा स्लाइटली हायर पैकेजेस. अब वो भी रैशनलाइज हो रहा है ऑनेस्टली. Go for profile, we should go for with brand, or we should go for role. What candidates should look in their first company? Okay. See, I mean, इसका एक आंसर नहीं है. अगर मेरे पास बहुत बड़ा लोन का बर्डन है तो मुझे हाई पेइंग पैकेज लेना ही पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज वो लोन का बर्डन विल किल यू. वी नॉट लिटरली किल यू, बट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कैरी. अगर आपकी सैलरी वो लोन सपोर्ट नहीं कर पा रही तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. वेरी प्रैक्टिकल आंसर, माइट नॉट लुक गुड, बट दैट इज़ द रियलिटी. बट अगर वो लोन का बर्डन नहीं है, सो देन देर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू फंडामेंटली आस्क. अब आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहे हो वो इसलिए भी होता है बिकॉज कॉलेजेस विजिबिलिटी नहीं देते हैं. अगर मुझे पता है कि किस तरह की कंपनीज और किस तरह के रोल्स ओवर द पीरियड ऑफ प्लेसमेंट प्रोसेस आने वाले हैं, तो मैं भी अपनी पर्सनल लाइकिंग इंटरेस्ट अलाइन कर सकता हूँ. बट मुझे अगर पता ही नहीं है तो जो बड़ी कंपनी मुझे सामने दिखेगी, आई एम फोर्स्ड टू अप्लाई बिकॉज मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होने वाला है. Okay, that is why at Crucible we are also building it very differently, where because those partnerships are already there upfront, we are saying कि यार ये है, ये roles exist करते हैं, you pick and choose. But anyways, to answer your question, the two things that students should ask. The first thing is मुझे किस डोमेन में जाना है, okay, या किस तरह के जॉब में जाना है, and within that domain which is the right company. अब किस डोमेन में जाना है वो कैसे पता करूँ, या कौन सा रोल में मुझे जाना है, उसके लिए आप खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है और मैं कहाँ पे अच्छा कर पाऊँगा. Giving my personal example, because I did my MBA immediately after engineering, I said मुझे ऐसे रोल में जाना है जहाँ पे भर भर के लर्निंग हो, बिकॉज मेरे पास जीरो लर्निंग है आज की तारीख. मुझे ऐसे रोल में जाना है जो मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंट ओनरशिप दे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन एंटरप्रेन्योर एट हार्ट. एंड तीसरी चीज़, उसमें थोड़ी सी वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, बिकॉज आई लाइक टू डू मल्टीपल थिंग्स. द मोमेंट आई सेड दीज थ्री थिंग्स, ऑटोमेटिकली सेल्स बिकेम द चॉइस, बिकॉज मुझे पता था ये तीनों चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत ईजिली मिलेगी. So that is the first thing. आप कौन हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है, एंड हेंस व्हाट काइंड ऑफ रोल विल सूट यू. द सेकंड इज हाउ टू चूज अ कंपनी विद इन दैट डोमेन. एंड आई सेड द सिंपलेस्ट वेज आर दीज माई काइंड ऑफ पीपल. बहुत सारी कंपनीज आती हैं, PPOs होते हैं, प्री प्लेसमेंट टॉक्स एक्सेट्रा सारी होती हैं. तो उसमें अगर आपको लगता है कि ये मेरे जैसे लोग हैं, मैं यहाँ जाके अच्छे से काम कर पाऊंगा विदाउट एनी प्रिटेंस, आई डोंट हैव टू फोर्स फिट माई सेल्फ इन दिस कंपनी, दैट्स अ ग्रेट कंपनी टू जॉइन. उसके अलावा एज यू हैड सेड अर्लियर, फर्स्ट जॉब मैटर नहीं करता, हाउ डू आई बिल्ड माई करियर, तो वो सारी चीज़ें तो हैं ही उसके बाद. बट इफ़ यू स्टार्टिंग लाइक दिस, आई थिंक यू आर गारंटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन द लॉन्ग टर्म एज वेल. मेरा सवाल यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस में जब हम स्टूडेंट से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि स्पेशली अगर हम बिग 4 की बात करें या फिर हम अगर कोई बहुत ब्रांड वाली कंपनी की बात करें, क्योंकि उनके पैकेजेस कम होते हैं, राइट. कुछ लेसर नोन कंपनीज कम विद थोड़ा सा ज़्यादा पैकेजेस, राइट. तो जब हम अपनी फर्स्ट जॉब देख रहे होते हैं तो व्हाट वी एग्जैक्टली नीड टू लुक एट. डू वी नीड टू गो विद ब्रांड्स, राइट? डू वी नीड टू गो विद पैकेजेस? Do we need to go for profiles? What exactly we need to see? See, obviously, कोई भी एक चीज़ cannot answer for that, क्योंकि प्रोफाइल और सैलरी का कॉम्बिनेशन दोनों होना ज़रूरी है. बट द सिंपल वे टू इवेल्युएट इज़ कि मेरा खुद का स्किल सेट क्या है, मेरा एरिया ऑफ प्रेफरेंस क्या है, किस तरह के डोमेन या रोल में मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. द मोमेंट आपको वो समझ में आता है, आप वो डोमेन्स लिस्ट करिए, उसके लिए योर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, किस तरह का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगेगा, एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है. एंड देन वंस यू श्योर ऑफ द डोमेन, देन यू डिसाइड उस डोमेन में कौन सी कंपनीज. तो अब कंपनीज को मैं स्टार्टअप या एस्टैब्लिश्ड की तरीके से इवैल्यूएट नहीं करना चाहूँगा. मैं ये कहना चाहूँगा कि आर दीज माई काइंड ऑफ पीपल. क्या मैं यहाँ जाके नेचुरल रह के काम कर सकता हूँ या मुझे खुद को फोर्स फिट करना पड़ेगा
बिकॉज फिर अगर आपको लगता है कि वहाँ का कल्चर, भले ही वो स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनी हो, आपके साथ मैच करता है, द यंग जनरेशन कॉल्स इट कैन आई वाइब विद देम, तो अगर वो है तो आई वुड से चूज दैट कंपनी गिवन द रोल एंड द सैलरी एटसेट्रा। बट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, आपका वैल्यू मैच एंड कल्चर फिट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमने ये सवाल किया है, बट अगर हम इन शॉर्ट बहुत सारी ऑडियंस को सिंपलर वे में समझना चाहें तो एक आइडियल फीस वर्सेस सैलरी का रेशो क्या होना चाहिए? एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जो मैं फीस दे रहा हूँ एटलीस्ट उतनी सैलरी, उससे बेटर तो डेफिनेटली ग्रेट, बट एटलीस्ट उतना होना मेरे हिसाब से इज राइट, क्योंकि अदरवाइज देयर इज नो ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क। सो आई वुड से व्हाटएवर आई एम पेइंग, एटलीस्ट दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। What is the standard salary what industry is offering right now, you know, irrespective of irrealistic placement reports जो कॉलेज की वेबसाइट्स पे हैं, what is the realistic? अच्छा, यही जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अभी रिसेंटली एक कॉलेज गई थी एंड वहाँ पे आई वाज टॉकिंग टू द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर. आई रियली लव्ड दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन. आई थिंक दैट वाज द ओनली कॉन्वर्सेशन वेयर आई फेल्ट कि ही सेड कि इंडस्ट्री में जो जॉब्स हैं वो इन रियल एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए 6 से 8 लाख के बीच में है, इससे ज़्यादा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो बच्चा टॉप 10%, टॉप 20 अच्छा थोड़ा सा ब्रीड है या फिर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इक्वालिटीज हैं, पर जॉब ब्रैकेट्स जो हैं वो यही हैं. तो अगर हम वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की बात करें, यू हैव बीन देयर इन द इंडस्ट्री, यू वाज रिक्रूटिंग फ्रॉम एन नंबर ऑफ कॉलेजेस राइट फ्रॉम tier 1, tier 2, tier 3 कॉलेजेस, क्या रियलिस्टिक एवरेज पैकेजेस हैं? आई एग्री विद दैट स्टार्टिंग रेंज ऑफ 6 to 8, but I would say that it is a spectrum of, I would say 7 to 12 or 8 to 12. I think a true MBA education should deliver in that package because that is where the realistic demand also exists. Companies want to optimize and pay lesser, but it is also the job of the student and the institute to get the right salary that the student deserves. And hence I am saying a good balance in both those things is 8 to 12. YouTube पे there are n number of videos, it's flooded all there that MBA is a scam, right? ऐसा सिनेरियो क्यों है? सिंपली बिकॉज जो फीस बच्चा दे रहा है और जो आउटकम उसे मिल रहा है उसमें उसको कोई कोरिलेशन नहीं दिखता, तो कहता है कि आप किस नाम पे फीस ले रहे हो। और दूसरी चीज़, मैं अगर सब्जेक्टिव एवेल्यूएशन करूँ क्वालिटी का, तो कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ना ऑब्जेक्टिवली ना सब्जेक्टिवली मुझे जो ख्वाब दिखाए गए थे वो पूरे हो रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे वो। ओके, मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है, राइट? क्रूसिबल ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? Industry first approach built completely on the based of industry requirements and real relationships rather than transactional way of doing Why things. Crucible? Why Crucible? You put me on the spot, but I think it's a great alternative to students where they think that they want to learn real skills. So if you want to learn real skills and be job ready, I think we are the best institute at a fixed ROI. I think that's why Crucible. MBA या फिर PGDM? Equally good. Depends on what college, what curriculum, what faculty. I don't see any distinction. You know, what is different on Crucible campus? Different on Crucible campus is that we are a nice, cozy place. Okay, so we do everything together. I think that's the big difference. Instead of everybody spread out, etc. I think that's the feeling that we Why love. Crucible is not just another B schools out there? Because we are the only one in the country who's saying fees linked to salary. Nobody has said that, and I doubt anybody will say it in near future. क्या strength है if we talk about Crucible faculties? How it's different? Big difference. All of these people are leaders, senior pros in their companies, doing these things on a daily basis. And I have worked with them personally, either as my team members, peers, clients, and I know that they're great at their jobs, as well as can be great teachers. Okay, which is the biggest differentiator. We've heard this thing, engineering and MBA deadly combination, but engineering then MBA, या फिर even with others, you know, different streams, then go for MBA. Do you think, you know? Currently the requirements that exist in companies, they require multifaceted skill sets. तो बहुत सारे लोग जो creative background से आते हैं या humanities background से, psychology background से, they are also doing amazing work. Okay, obviously they have to learn a few other things, etc. But I would say the current environment supports all kind of talent from all streams. And ये जो obsession है हमारा engineering plus MBA, I think it is going to change very, very soon. And the startup world is going to change that. 5 things every student should have in their profile. So, okay, I mean, let me answer this. The 5 skills that, I mean, are really important. The first thing is my willingness to learn, my hunger to keep working hard, and, I mean, communication skills for sure,
and I think problem solving attitude. I think those are the 3 or 4 things that I would say if you have that in, I mean, as a student, you're done. एक स्किल जो नहीं है और प्लेसमेंट उसकी वजह से नहीं होता है, वो क्या है? Job readiness. I don't know what the job is all about. Colleges don't teach that. So job readiness is not just a skill. I think that's the biggest thing missing in all MBA programs. If somebody is shortlisting colleges, they have these certain things जिस पे हम usually जब college review बना रहे होते हैं, तो आपके हिसाब से इनको क्या order देना चाहिए? Curriculum, specialized wise curriculum, faculties, placement and career support, location in campus, alumni, ROI exposure. Placement, ROI, okay, curriculum, faculty, and campus. Any one last thing you want to add to this video? Just happy to be here. Really believe in people who want to do communication around education with a very, very genuine and heartfelt way. And I think that is where I connected with you very, very closely. And always happy to get associated with more such people, because there's a very high requirement of people genuinely doing good in the field of education, because the students really need that. There's a lot of misinformation and misleading happening. And I'm hoping that a few such people like you are doing that job of impartial, selfless education than the, I don't want to call whatever it is, but yeah. So this is how I'm going to end this special podcast. I hope you enjoyed it. You've learned so many things about colleges, selection, and especially placements. So that's all about this podcast. I hope you enjoyed and you have learned and known a lot of things about MBA and MBA colleges. And I hope ये podcast देखने के बाद आप एक सही decision ले सको, choosing a right B school with your profile, right? So ऐसी podcast देखने के लिए don't forget to subscribe. This was me, Ashikan, signing off. मिलते हैं एक और episode के साथ.